नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राजस्थान संस्कृत अकादमी और कला, संस्कृति, साहित्य तथा पुरातत्व विभाग, राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस माघ मंथनम अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में आपका विशिष्ट स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम महाकवि माघ के काव्य दर्शन के विषय में चर्चा करेंगे। हमारा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में हमारे मार्गदर्शन के लिए पूर्व कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, जो संस्कृत के सबसे बड़े हस्ताक्षर हैं, वो उपस्थित हैं। हमारे साथ विश्व के अनेक देशों से विद्वान इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति रेखांकित करा रहे हैं, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। कार्यक्रम के आरंभ में हम सर्वप्रथम सरस्वती वंदना करेंगे। प्रस्तुत है सरस्वती वंदना। माँ शारदे इस कार्यक्रम को सफलता प्रदान करें। इसके बाद मैं आगे ये कहना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों भाषाओं में बहुभाषी तरह से प्रस्तुत किया जाएगा। हमारे साथ संस्कृत के भी विद्वान हैं, हमारे साथ हिंदी के भी विद्वान हैं और अंग्रेजी बोलने वाले भी हैं, इसलिए हम तीनों भाषाओं का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा माघ का जो परिचय है वो हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे। ज्योति, आप मुझे सुन पा रही हैं? ज्योति का, हाँ ज्योति, हमारे साथ ज्योति एक साइकोलॉजी की स्कॉलर हैं। हेलो, am I audible? हाँ जी, आपको आवाज़ आ रही है ज्योति, आपको मेरी? जी सर, जी सर। तो ज्योति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो माघ के विषय में एक छोटा सा परिचय प्रस्तुत करेंगी। ज्योति, आइए मंच पर आए। Thank you, sir. Thank you so much. Namaskar. Good evening to everyone. I'm absolutely grateful for this opportunity, this chance. Thank you so much. Mahakavi Magha is one of the leading poets in the panorama of world poets. He was born in the 7th century in the western part of Rajasthan, Jalore district, in a family of Sanskrit scholars. His famous creation, Shishupal Vadam, is based on the story of Mahabharata. In the 20 cantos of this famous epic, one finds the lively description of nature, including rivers, mountains, flora and fauna of this rich nation, as well as also birds and animals, depicting the rich heritage of the local folklore. He has been greatly admired for his remarkably magnificent descriptions. In this epic, one also finds invaluable messages for great life values, lofty human ideals, enshrined in our ancient literature. That is precisely the reason why this epic has been included in the famous Brihatrayi. This classical poet was the state poet of Maharaj Varmala and was very generous and a large hearted person. He donated his immense wealth for the larger benefit of society. This act of Mahakavi Magha is also recorded in history. His scholarship, his generosity, his great character has been highly acclaimed and been a matter of great pride for our nation. Since this great poet of Rajasthan was born on the Purnima of the month of Magha, so this date is celebrated as his birth date ever since. His statue has been established in Bhimmal. The Postal Department of Government of India has also released a postage stamp in 2009 on Magha Purnima, commemorating his great contribution on the request of RSA, Rajasthan Sanskrit Academy. In his honor, the RSA has announced its highest award for the best creation in Sanskrit as Magha Puraskar since 1980. The Rajasthan Sanskrit Academy is celebrating Mahakavi Magh Mahotsav from 16th February to 16th March 2022.
This mega festival will witness a host of interesting events ranging from Sanskrit Kavi Sammelan to Sanskrit Band. Other highlights will include debate, many competitions, and talks on various aspects of Mahakavi Magha. New innovative ideas of Rajasthan Sanskrit Academy are the presentation of Magh Rag, National Ved Sammelan, talk show about Ved Vigyan and scientist on National Science Day, in perception of women, Sanskrit Sanskriti Sanskar or International Women's Day, National Sanskrit Film Festival, and Sanskrit Youth Festival, etc. Thank you so much on behalf of the Rajasthan Sanskrit Academy. Thank you. Thank you so much, Jyoti ji, for that wonderful introduction. It was delightful to see somebody so young interested in Magha and Sanskrit and our culture. So please keep it up and bring more of your age along in this movement of I'll try my best. rejuvenating. Thank you. It's Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और भारत से जयपुर से निकलकर हम चलते हैं इंडोनेशिया की तरफ, जहां पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं नीपुतु रत्नी जी, जो हमारे लिए माघ के विषय में कुछ चर्चा करेंगी, कुछ उनके काव्य के बारे में, कुछ काव्य दर्शन के बारे में हमें कुछ विशिष्ट बातें बताएंगी। नीपुतनु रत्नी जी इंडोनेशिया से हमारे साथ मंच पर आमंत्रित हैं। आइए। You need to unmute yourself, Putu. Okay, Yes. this is my time now. Yes. Go ahead. Okay. You are audible. Okay. No problem. Thank you. Thank you for the time. So I would like to deliver about Magha and the Indian Middle. You're welcome. The illustrious works of Mahakavi Magha are referred and celebrate. I'm sorry, I can open in my laptop, right? Refer and celebrated even today, as does his magnetic impression, not just in the history of Sanskrit epic poetry, but the history of poetry, of literature, and that of India too. Mahakavi Magha, a 7th century Sanskrit poet at King Varmalata's court at Srimala, the then capital of Gujarat, presently in Rajasthan state. He was the son of Dattaka Sarvacharya and grandson of Suprabhadeva. His epic poem Mahakavya Sisupavadam is taken from Mahabharata. It describes in 20 chances the killing of Sisupala, the king of Chedi, by Lord Krishna. His poetic creations are reflected in the twist he lends to his epic Sisupalawadam when the poet halts the march of Krishna's army at Raivataka mountain to admire its beauty. Who would imagine that in the midst of an epic, one could present life in such heartwarming, eye-opening ways through scenic accounts of meadows and mountains? Charming, cathartic, and that's probably how Maga's words found a way around the world. What makes Maga relevant in the Indian narrative? India, on about more than 100 dance forms, 1,600 languages, and every faith is also home to a magnanimous literary landscape painted vividly by its stalwart. Bharat Muni, the sage who composed Natya Sastra, said, "Poetry is the only source of peace in the world of wars." Taking a moment to let that sink in, you'll see how subtle art, beauty, joy, and intellect have always held a place in the Indian thought, ethic, and morality as the final place on global diplomacy.
today. Culture, comparison believed to be their absolute nature. Harmony, peaceful coexistence, and other tenets of diplomacy have been passed on to them, to us, just like that as value, as principle to be adhered to. Nature, what once enchanted and held captive the romantics in the past, has always been an object of worship in the Indian tradition. What confined to simply brief description by the romantics has been documented in exaggeration and hyperbole by the august pioneers of Sanskrit poetry right from the Rig Veda. What continues to move artists all over the globe, even today, forms the very nucleus of the Indian even today, which is once again the value of beauty, art, joy, and optimism. The Indian works resonate with John Milton's senseless love for nature, Wordsworth's scenic description, Shelley optimism, and Keats' simplicity, and yet transcend beyond mere external association of man with nature. The Rig Veda's hymns the poets compose in praise of the beauty of the earth, the moon, and the sun carry infinite wisdom drug equal parts in beauty and sanctity. Where Kalidas wove his poetry with a meticulous uh, Venus, Mahakavi Magga outdid everything with his embellished tones, and his verse reflected tones of magic, sexuality, and beauty in full swing. Magga charms the reader with his fulsomness of exploration and thought. He, he explores theme and sensuality and sensibility with the same literary prowess. His works can leave the reader yearning for love or with a quest for transcendence. He doesn't shy away from delving into the primitive or intellectual end of the spectrum. He so casts a spell, a catharsis, that the reader feels deeply touched and automatically ready to merge into the infinite intellectual or primal. Magga has romance, nature, season, flora and fauna, diplomacy, charity, ethic, ideals, and desires with equal and justified beauty in his works. Besides that, in Art Gaurav, Magga has also laid out such rational ideas for behaviors and its consciousness that consequences that it makes one wonder how could philosophies of idealism and pragmatism be mingled together so well. As per Magga, an ideal society is one that fosters values of art, creativity, intellect, and knowledge, and is far from mere materialistic fixation, doesn't promote gambling, addiction, and mindless behavior. Through his myriad metaphors, Magga gives us principles of behavior that can well form the ground for behavioral politics and diplomacy today. The validity of these principles can certainly be debated today, but we cannot debate that these have been and still are the core principles at every major school of thought today. And this is probably why and how the lineage of Sanskrit and Sanskrit poets is alive still today. Everything that we need is already here, not just in our conventional wisdom, but within us as well. And we cannot deny that nature is a part of who we are. So is art, so are the fairies, and so is the entire universe. I think that's all. Thank you Thank very you much so for your much. attention. Thank you so much, Puttu. Thank you. Puttu has joined us from Bali. Yes, She Bali works province. in the State Hindu University. So thank you Yes. so much for joining us from there. Thank you, Puttu. Thank you very Right. much for the chance. Right. Okay. So as Puttu was saying, and there's so much to say about Magga, and
there was a ecomicum paid to Magha, which I think is the most appropriate, which goes as Upama Kalidasasya Bharver Thagauravam Dandinah Padlalityam Maghe Santi Trayogunaha. What it means in English is Kalidasa excels in his similes, Bharvi in his depth of meaning, Dandi in his charm of words, but Magha excels in all the three qualities. Magha is considered to be the most gifted poet of Sanskrit of all times. And we are here to celebrate his life and time and his creations. So the next person I want to invite is from Sri Lanka. I recently visited Sri Lanka, the beautiful country of Sri Lanka. Atila Kotlawalji, she is a founder, director of Hindi Sansthan in Sri Lanka. She teaches young children Hindi, and she is creating a new generation of Hindi speakers in Sri Lanka. So we need to thank her for the effort she is making in promoting Hindi. And I invite her now to the stage to talk briefly about Magha. अनम्यूट कर लीजिए. बहुत आभार अभिषेक जी, और मैं राजस्थान सांस्कृतिक अकेडमी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे इस कार्यक्रम में, भव्य कार्यक्रम में आपने मुझे जोड़ा। और मैं सिंहली हूँ, मेरी मातृभाषा सिंहली है, तो फिर भी हिंदी मुझे इतनी अच्छी लगती है। तो मुझे माघ जी के बारे में, उनके कवित्व के बारे में लिखे हुए कुछ लेख मिल गए, तो मुझे लगा कि मैं हिंदी में ही इसको पढ़ूं। तो अगर कहीं पे कोई गलती हो तो माफी चाहूंगी। माघ का प्रकृति पर्यवेक्षण, लेखक डॉक्टर रामदेव साहू। संस्कृत कवित्व के आदर्शों में प्रकृति पर्यवेक्षण सार्वत्रिक रूप में विद्यमान रहा है। एक प्रकार से प्रकृति कवित्व को साजीव्य प्रदान करती है, अतः कोई भी कवि प्रकृति के सर्वदा निरपेक्ष रहकर काव्य रचना नहीं कर सकता। प्रकृति के मूलतः के दो स्वरूप रहे हैं, अंतः प्रकृति एवं बाह्य प्रकृति। अंतः प्रकृति पात्रों के मनोभावों एवं चेष्टाओं से अभिव्यक्त होती है, जबकि बाह्य प्रकृति विविध प्राकृतिक उपादानों के स्वरूप एवं उनमें दृश्यमान वैविध्य या वैशिष्ट्य के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। श्रेष्ठ कवि प्रकृति के दोनों रूपों के प्रस्तुतिकरण के माध्यम से अपने कवित्व को अभिमंडित करता है। महाकवि माघ भी कवित्व सौंदर्य के संवर्धन के उद्देश्य से प्रकृति सापेक्ष वर्णनों की सुललित योजना अपने महाकाव्य शिशुपालन वध में करते हैं। माघ अंतः प्रकृति के सूक्ष्म वेत्ता है। अंतः प्रकृति ही प्रकृति का मूल रूप है, बाह्य प्रकृति तो विकार मात्र है। इस रहस्य को उन्होंने श्री कृष्ण के विषय में बहुत ही गूढ़ रूप से अभिव्यक्त किया है। इसी प्रकार श्री कृष्ण के मिथ्याभाषित्व की चेष्टा के निरूपण के माध्यम से वे उनके अंतर्हृदयनिष्ठ महापुरुषत्व को सूचित कर अंतः प्रकृति की हृदयावर्जक प्रस्तुति करते हैं। यावदर्थ पदां वाचमेव मादाय माधवः वीररां महिमांसः प्रकृत्या मितभाषिणः। संयोग श्रृंगार के वर्णनों में नायक एवं नायिका के अंतर्गूढ़ सहजानुराग के साथ चुंबनालिंगनादि आदि इच्छाओं की गूढ़ भावनाओं के प्रस्तुतिकरण में माघ जिन चेष्टाओं का उल्लेख करते हैं, उनमें अंतः प्रकृति के सार्वधिक कोमल पक्ष की ललित अभिव्यंजना सहृदयों को स्वभावतः आह्लादित कर देती है। यहाँ किसी मुग्धा नायिका द्वारा अपने प्रियतम के वक्ष के ऊपरी भाग में खिले हुए पुष्पों की याचना अभिप्रेत है।
इसी तरह के श्लोक हैं यहाँ पे। नायक के हृदय में नायिका के आलिंगन की गूढ़ इच्छा विद्यमान है, उसे यह उचित बहाना मिल जाता है, वह तो दोनों हाथों से ऊपर उठाता है और कहता है, लो तुम ही तोड़ लो। इस वर्णन में अंतः प्रकृति का गोपन भी व्यंजना से उसे अभिव्यक्त कर ही देता है। इसी प्रकार इंद्रप्रस्थ प्रस्थान के समय श्री कृष्ण के प्रति उनकी प्रियाओं की नम्र मुक्तवादी चेष्टाओं एवं कटाक्षादि क्रियाओं के माध्यम से अंतर्गूढ़ प्रणयानुभावों की अभिव्यक्ति अंतः प्रकृति के लालित्य को उपस्थापित कर देती है। अंतः प्रकृति की भांति ही बाह्य प्रकृति के चित्रण में भी माघ सिद्धहस्त हैं। उनकी अलंकृत काव्य शैली बाह्य प्रकृति के वर्णनों के उपनिबंधन से सर्वाधिक उत्कृष्ट को प्राप्त कर सकी है। यमक, अनुप्रास, श्लेष जैसे शब्दालंकारों से वे बाह्य प्रकृति के चित्रण को पाठक के लिए गांभीर्य का विषय बना देते हैं। प्रकृति के आलंबन रूप से चित्रण को भी माघ ने व्यापकता से अपनाया है। 12वें सर्ग में खेतों में पके धान की रखवाली करने वाली भोली मुग्ध ग्राम्य बालाओं का चित्रण अत्यंत स्वाभाविक है, जो प्रकृति के सहचर्य एवं प्रकृति प्रेम का भी सफल उदाहरण बन गया है। रैत वर्णन के प्रसंग में अरुणोदय के दृश्य का चित्रण भी अत्यंत अभूतपूर्व है, जहां उपमा उत्प्रेक्षा एवं रूपक योजना कर माघ ने प्रकृति के रमणीय दृश्य को अपनी कल्पना शक्ति से और भी अभूतपूर्ण बना दिया है। माघ लिखते हैं, पर्वत के एक ओर सूर्य उदित हो रहा है तो दूसरी ओर चंद्रमा अस्त हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो रैवतक रूपी गजराज के दोनों ओर 2 घंटे लटक रहे हैं। कहीं कहीं माघ अंतः प्रकृति का बाह्य प्रकृति से समन्वय भी प्रस्तुत करते हैं। वैसे स्थलों पर मानवीय चेष्टाओं में प्रकृति के उपादानों की क्रियाओं को उपकल्पित कर वे एक नूतन आकर्षक उत्पन्न कर देते हैं। 6ठे सर्ग में प्रकृति के श्रृंगारिक वर्णन में अंतः एवं बाह्य प्रकृति के इस समन्वय को स्पष्ट देख सकते हैं। माघ के प्रकृति वर्णन पद्यों में से स्पष्ट आभास होता है कि वे प्रकृति के अंतः एवं बाह्य दोनों पक्षों को सूक्ष्म मर्मज्ञ थे। अलंकृत शैली एवं उक्त वैचित्र्य को अपनाकर उन्होंने अपनी प्रकृति पर्यवेक्षण क्षमता को ही इन वर्णनों में फलीभूत किया है। वस्तुतः माघ की कविता कामिनी प्रकृति के इन दोनों पक्षों में विलक्षण दृष्टिगोचर होती है। अतः माघ काव्य के प्रति विद्वज्जनों का आकर्षण स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। विचित्र काव्य सर्ग का चरमोत्कर्ष इसी आधारशिला पर माघ काव्य में सुस्थिर हो गया है। बहुत बहुत आभार आप सभी का। अभिनंदन। नमस्कार। बहुत सुंदर चर्चा अतिला जी, और श्रीलंका में कोरोनेगल से आपने इतना सुंदर व्याख्यान दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और आप ऐसे ही हिंदी की सेवा करती रहें, इसकी आपको शुभकामनाएं हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं हमारे एक और पड़ोसी देश नेपाल की तरफ। वहाँ से हमारे मित्र श्री सत्येंद्र दहिया जी, जो कि हिंदी और संस्कृति अधिकारी हैं भारतीय दूतावास में, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनको मंच पर निमंत्रित करता हूं कि वो आएं और माघ के बारे में अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। श्री सत्येंद्र दहिया जी।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, श्री अभिषेक त्रिपाठी जी, और कार्यक्रम में देश विदेश से उपस्थित सभी विद्वजनों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। आप सब में अतिला जी से वेबिनार के माध्यम से परिचित हैं, हम अक्सर कार्यक्रमों में आपको सुनते हैं, और मैं आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण और महनीय आयोजन के लिए राजस्थान संस्कृत अकादमी के सभी पदाधिकारियों को, पूरी टीम को, आयोजकों को बहुत बधाई देना चाहता हूं, और इस विशेष कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का अवसर देने के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि अभी तक हमने सुना है महाकवि माघ के बारे में, तो मैं सीधा विषय पर आता हूं। और माघ को संस्कृत आलोचकों और विद्वानों द्वारा प्रायः एक प्रकांड सर्वशास्त्र तत्वज्ञ विद्वान माना जाता है। दर्शन शास्त्र, संगीत शास्त्र और व्याकरण शास्त्र में उनकी विद्वता थी। खास बात यह थी कि उनका पांडित्य एकांगी नहीं बल्कि सर्वगामी था, अतएव उन्हें पंडित कवि भी कहा गया है। हम जानते हैं कि अपनी समृद्धिशालिनी परंपरा के लिए विश्वविख्यात संस्कृत वाङ्मय के रचनाधर्मियों में महाकवि माघ का अद्वितीय स्थान है। माघ काव्य अपनी श्रेष्ठता एवं प्रौढ़ता के कारण अनुपम है। महाकाव्य के लिए निर्धारित मानदंडों से युक्त उत्कृष्ट कविता की कसौटी पर परखे गए खरे सोने की भांति माघ काव्य निर्दिष्ट कृतिव्य के लिए आज तक सुविख्यात है। माघ काव्य की महत्ता का मूल आधार उसकी वस्तु योजना में निहित अनेकानेक मौलिक उद्भावनाएं हैं, जो न केवल कथावस्तु को एक नव्यता एवं भव्यता प्रदान करती हैं, अपितु महाकवि माघ की पांडित्यमयी प्रतिभा एवं उससे आप्लावित कल्पना शक्ति की प्रौढ़ता एवं उर्वरता को भी लक्षित करती हैं। संस्कृत भाषा के सर्वाधिक व्यवहारोपयोगी शब्दों का समाहार करना माघ काव्य में रचनाकार माघ की उल्लेखनीय उपलब्धि है। ऐसा शब्द समाहार अन्य किसी भी महाकाव्य में, यहाँ तक कि दुनिया की किसी भी भाषा के महाकाव्य में नहीं देखा जाता। अतः विद्वजनों ने एक स्वर में नवसर्ग गते माघे नवशब्दो न विद्यते कहकर माघ की प्रशंसा की है। माघ के विषय में यह प्रशंसापूर्ण उक्ति कोई अतिशयोक्ति नहीं है, अपितु उनके अभिनव शब्द संयोजन को रेखांकित करती है। अल्प शब्दों में विस्तृत कथ्य को समेटने में माघ की शब्दावली सर्वथा सक्षम है, अपने आप में संपूर्ण है। इसी प्रकार माधुर्य, ओज एवं प्रसाद तीनों गुणों के प्रकर्ष का संयोजन भी माघ की मौलिक उद्भावना है, क्योंकि गुणत्रय का ऐसा प्रकर्ष भी अन्यत्र कहीं दुर्लभ है। इसका कारण वर्णनानुरूप पदावलियों का संयोजन है, जिससे वर्णनों में चित्रोक्मता को नैसर्गिक हो गई है। इसी प्रकार उपमा, अर्थगौरव एवं पद लालित्य की उत्कृष्ट संयोजना के संदर्भ में भी माघे संति त्रयो गुणाः कहकर विद्वजनों ने माघ के वैशिष्ट्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। माघ का यह विषय वैशिष्ट्य सहृदय पाठकों को जितना आह्लादित करता है, उतना अन्यत्र किसी भी भाषा में, किसी भी साहित्य में दुर्लभ है। माघ की प्रशंसा में कहा गया है, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। अर्थात कालिदास उपमा में, भारवी अर्थ गौरव में और दंडी पद लालित्य में बेजोड़ हैं, लेकिन माघ में ये तीनों गुण हैं। माघ की उर्वर कल्पना शक्ति बहुत प्रभावित करती है। नारद एवं श्री कृष्ण के बीच शिशुपाल वध विषयक वार्तालाप, उद्धव, बलराम एवं श्री कृष्ण के बीच राजनीति विषयक वार्तालाप की योजना आदि ऐसे उल्लेखनीय तथ्य हैं जो वस्तुगत मौलिकता के सृष्टा कहे जा सकते हैं, और जिनके माध्यम से एक लघु कथानक को महाकाव्य के लिए अपेक्षित विस्तार प्रदान करने में माघ सर्वथा सक्षम रहे हैं। और माघ ने जिस अलंकृत काव्य शैली को अपनाया है, उसमें अलंकारों के सन्निवेश भी उनकी मौलिक उद्भावनाएं सहज दृष्टिगोचर होती हैं। माघ ने शिशुपाल वध नामक केवल एक ही महाकाव्य लिखा। इस महाकाव्य में श्री कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चेदी नरेश शिशुपाल के वध का सांगोपांग वर्णन है।
महाकवि भारवी द्वारा प्रवर्तित अलंकृत शैली का पूर्ण विकसित स्वरूप माघ के महाकाव्य शिशुपाल वध में प्राप्त होता है, जिसका प्रभाव बाद के कवियों पर बहुत ही अधिक पड़ा है। उनके बारे में पंडित बलदेव उपाध्याय ने कहा है, अलंकृत महाकाव्य की यह आदर्श कल्पना महाकवि माघ का संस्कृत साहित्य को अविस्मरणीय योगदान है, जिसका अनुसरण कर हमारा काव्य साहित्य अत्यंत समृद्ध, संपन्न तथा सुसंस्कृत हुआ है। मानवीय संवेदनाओं से पूर्ण अनुभूतियों को सहज मानवीय चेष्टाओं के वर्णन के माध्यम से अभिव्यंजित करना भी माघ की मौलिक उद्भावनाओं में परिगणित अन्यतम वैशिष्ट्य है, जो अंतः प्रकृति को पाठकों के मनःपटल पर रूपायित कर देता है। मौलिक उद्भावनाओं ने ही माघ के प्रतिभा एवं पांडित्य को सर्वातिशायी बनाया है और इसी कारण माघ अतुलनीय यश से अभिमंडित हुए हैं। वस्तुतः माघ जैसे प्रतिभा एवं पांडित्य के धनी युग दृष्टा एवं शाश्वतिक कवित्व धारा को सुनिश्चित प्रवाह प्रदान करने वाले महाकवि युग युगांतर में ही कदाचित जन्म ग्रहण करते हैं। अत्यंत गौरव का विषय है कि राजस्थान में जन्मे महाकवि माघ आज भी विश्ववंदनीय हैं एवं चिर स्मरणीय हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने संबोधन को विराम देता हूं और मुझे अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अनम्यूट कर लीजिए अभिषेक जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और इतना सारगर्भित और इतना सधा हुआ आपका वक्तव्य और इतना कुछ हमें माघ कवि के बारे में पता चला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेपाल से भारतीय दूतावास में जुड़े हुए हमारे साथ श्री सत्येंद्र दहिया जी, बहुत बहुत आभार। माघ के बारे में कहा जाता है कि माघ ने अपने जो 9 सर्ग लिखे पहली पुस्तक में, पूरे संस्कृत भाषा की जितने भी शब्द हैं वो 9 सर्गों में ही प्रयोग कर लिए थे और 10वें सर्ग में कोई नया शब्द नहीं था जो उन्होंने, नया शब्द नहीं आया जो उन्होंने पहले उपयोग न किया हो। तो इतनी बड़ी प्रतिभा के धनी और इतने बड़े महाकवि के बारे में आज हमारा सौभाग्य है कि हम उनके बारे में आज यहाँ पर कुछ वार्ता चर्चा कर पा रहे हैं। और हमारे साथ इस चर्चा में दूर रूस से मॉस्को यूनिवर्सिटी के इंडोलॉजी विभाग से एक पति पत्नी का जोड़ा हमारे साथ जुड़ा हुआ है और यह हमारा बड़े एक विचित्र बात है, अनोखी बात है कि पति जो है वो संस्कृत के विद्वान हैं और पत्नी हिंदी की विद्वान है और दोनों की मातृभाषा हिंदी नहीं है। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि वो आज हमारे साथ हमारे मध्य उपस्थित हैं और कैमरा भी दोनों एक ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि लुदमिला और बोरिस दोनों मंच पर आएँ और अपना जो भी चर्चा, व्याख्यान है, संबोधन है वो हमारे सामने प्रस्तुत करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है लुदमिला और बोरिस। Thank you. Yes. So, good day to everybody. Good day. Good evening here, sir. We can hear you. We can hear you. तो हमारी आवाज आती है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। आती है जी। विश्वस्य प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली मध्ये विस्तृतस्मिन् राजस्थान प्रदेशे पूर्वपाषाणकालीन सभ्यता, उत्तरपाषाणकालीन सभ्यता, वैदिक सभ्यता विकसिता। आद्य आरव्य प्राय 25,000 वर्षाणि पूर्वं राजस्थानस्य पवित्रभूमौ प्रवाहितमद्य नद्या सरस्वत्या तात ऋग्वेदस्य ऋचाम् आविर्भावऋषीणां मुखरविन्दात् अभूत्। पंजाब प्रदेश, राजस्थान प्रदेश च सप्त सिंधु प्रदेश इति नाम्ना उच्यते।
महर्षि मनुर अपि अत्रैव सरस्वत्या तटे न्यवासत्। आर्याणां प्राचीन निवास स्थानत्वात् प्रदेशोऽयम् आर्यवार्ता उक्ता। स्वतन्त्रता प्राप्त्यानन्तरं प्रदेशोऽयं राजस्थान नाम्ना प्रथिता। महाकवि माघ सदृशानां प्रकांड विदुषां मालकविनां प्रसादित्रियं पवित्र भूमि सकीय गौरवशाली इतिहास कारणात् विश्व इतिहासे सदैव चर्चिता। अच्छा, आगे मैं कुछ बोलूंगी। मुझे मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे इस तरह राजस्थान जाने का मौका मिला। वैसे जयपुर यूनिवर्सिटी ये पहली जगह थी जहां मैं हिंदी सीख रही थी जब मैं विद्यार्थी थी। और मेरे गुरु थे प्रोफेसर भार्गवा, जो मुझे संस्कृत सिखा रहे थे। तो और राजस्थान हमेशा मेरे दिल में रहा। तो अब मैं माघ के बारे में कुछ बोलने की कोशिश करूंगी, या उनकी रचनाओं के बारे में। महाकाव्य माघ रचित शिशुपालवधम महाकाव्य में दिए गए काव्यवंश वर्णन के अनुसार माघ के पितामह सुप्रभादेव थे। इन्हीं सुप्रभादेव के पुत्र दत्त के पुत्र रूप में माघ ने जन्म लिया। शिशुपालवधम की कुछ प्रतियों में दिए गए उल्लेख के अनुसार महाव्याकरण माघ के पूर्वज श्री भिन्नमाल के निवासी थे, जो कि वर्तमान में राजस्थान का भिन्नमाल नगर है, जहां श्रीमाल गोत्र के ब्राह्मण अभी भी निवास कर रहे हैं। माघ के जन्म समय के संबंध में संस्कृत साहित्य में यद्यपि 625 ईस्वी से लेकर 11वीं शताब्दी तक के मत प्रचलित हैं, तथापि प्राय सभी विद्वान ये स्वीकार करते हैं कि 675 ईस्वी के लगभग महाकवि माघ का जन्म हुआ, क्योंकि राजा वर्मलात का एक क्या कोई समस्या है? कोई क्या मेरी आवाज आती है? आवाज आ रही है। थोड़ा सा पीछे हो जाइए। बोलिए, कोई समस्या नहीं। थोड़ा सा पीछे हो जाइए तो चेहरा दिखेगा। अच्छा, हाँ, बस ठीक है, ठीक है। अच्छा। तो मैं उनके जन्म के समय बोल रही थी। तो वैसे सभी विद्वान ये स्वीकार करते हैं कि 675 ईस्वी के लगभग महाकवि माघ का जन्म हुआ, क्योंकि राजा वर्मलात का एक शिलालेख डॉक्टर किलहोर्न को राजपुताना के वसंतगढ़ नामक स्थान से प्राप्त हुआ था, जिसका समय 625 ईस्वी माना गया है। इसी तथ्य के आधार पर अधिकांश विद्वान माघ के पिता दंतक का समय 650 ईस्वी तथा माघ का समय 675 ईस्वी के लगभग स्वीकार करते हैं, जो कि समीचीन प्रतीत होता है। माघ के पितामह सुप्रभादेव राज्य वर्मलात के प्रधानमंत्री थे, अतः तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार माघ का परिवार राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं पांडित्य की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध रहा है। वल्लभ पंडित ने स्वयं द्वारा संग्रहित भोज प्रबंध में माघ एवं उनकी धर्मपत्नी की दानशीलता का सम्यक
वर्णन किया है। यही कारण है कि तत्कालीन समय में जितने भी काव्यों और शास्त्रों का तथा अन्य ज्ञान विज्ञान की विविध धाराओं का आविर्भाव हो चुका था, उन सभी का पूर्ण ज्ञान महाकवि माघ को था। माघ ने अपने महाकाव्य शिशुपालवधम में वेद, व्याकरण, काव्यशास्त्र, दर्शन, उपनिषद, पुराण, राजनीति, आयुर्वेद, नीति शास्त्र, संगीत शास्त्र, पाक शास्त्र आदि से संबंधित विद्याएं, समाजशास्त्र, ज्योतिष, कामशास्त्र तथा अन्य सभी शास्त्रों एवं विविध कलाओं से संबंधित ज्ञान का शिशुपालवधम में न केवल पांडित्य पूर्ण प्रदर्शन किया है, अपितु अपनी अद्भुत कल्पना शक्ति का आश्रय लेकर स्वयं का महाकवित्व भी सिद्ध किया है। महाकवि माघ को विद्वत्ता की कसौटी माना गया है। माघ को विविध शास्त्रों के ज्ञान के साथ साथ सामाजिक ज्ञान का भी काफी पर्याप्त था। समाज में व्याप्त परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में माघ को महारत हासिल थी। समस्त अलंकारों के प्रयोग में माघ की अबाध गति थी। अपनी अद्भुत कल्पना शक्ति के कारण माघ ने शिशुपालवध की छोटी सी कथा को लेकर विशाल महाकाव्य का निर्माण किया, जो कि माघ के अद्भुत रचना कौशल को अभिव्यक्त करता है। संस्कृत साहित्य में कालिदास का उपमा प्रयोग, महाकवि भारवी का अर्थ गौरव तथा दंडी का ललित्य सर्वाधिक प्रसिद्ध है, किंतु एकमात्र माघ ही ऐसे काव्यकार हैं जिनमें उक्त तीनों गुणों का समाहार देखने को मिलता है। माघ के प्रौढ़ पांडित्य के समक्ष तत्कालीन एवं परवर्ती सभी साहित्यकार एवं काव्यशास्त्री नतमस्तक थे। और संस्कृत साहित्य में यद्यपि सहस्रों महाकवियों ने अनेक काव्यों तथा महाकाव्यों की रचना की है, किंतु उनमें रघुवंशम, कुमारसंभवम, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम नामक महाकाव्य सर्वाधिक चर्चित रहे हैं और उनका विभाजन भी किया जा सकता है। इनमें कालिदास की कृतियों रघुवंश, कुमारसंभव तथा मेघदूत संस्कृत साहित्य में लघुत्रयी के नाम से प्रख्यात हुई। शेष किरातार्जुनीयम और ये जिनका वर्णन हम कर रहे हैं, शिशुपालवधम और आदि नामक महाकाव्य नहीं, कोई बात नहीं, आप जारी रखिए। वृहत्त्रयी के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिनका सर्वाधिक अध्ययन अध्यापन संप्रति भी हो रहा है। इन्हीं वृहत्त्रयी के मान्य शिशुपालवधम महाकवि माघ द्वारा रचित महाकाव्य है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 14वें अध्याय में तथा महाभारत के सभा पर्व के 33 से 45 तक के अध्यायों में वर्णित शिशुपालवध की कथा को आधार बनाकर माघ ने संसार प्रसिद्ध महाकाव्य शिशुपालवधम का निर्माण किया। इसमें कुल 20 सर्ग हैं, जिनमें देवर्षि नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों का विवरण देते हुए उनके अत्याचारों का उल्लेख,
श्री कृष्ण से उसके संहार का प्रार्थना, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण का प्रस्थान, युधिष्ठिर की राजधानी इंद्रप्रस्थ में श्री कृष्ण के प्रति शिशुपाल का अभद्र व्यवहार तथा श्री कृष्ण द्वारा उसका वध वर्णित है। संस्कृत काव्य संसार का अनर्घ रत्न शिशुपाल वध में महाकाव्य के सभी गुण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। मग ने अपने पूर्ववर्ती सभी कवियों एवं महाकवियों के उत्कृष्ट गुणों का संचयन इसमें किया है। मग ने कालिदास का उपमा सौंदर्य, भारवी का अर्थ गौरव, दंडी का पदललित्य तथा भट्टी का व्याकरण पाठ ग्रहण कर शिशुपाल वधम को न केवल संस्कृत का अपितु विश्व साहित्य का उत्कृष्टतम महाकाव्य बना दिया। शिशुपाल वध में काव्य निपुणता भी है और व्याकरण पटुता भी, कला पक्ष का प्राचुर्य भी है तथा भाव पक्ष का भी, वीर रस का सौंदर्य भी है तो श्रृंगार रस का भी, राजनीति का उपदेश भी है तो दर्शन शास्त्र का भी, अर्थालंकारों की सुंदर छटा है तो शब्द अलंकारों को भी पर्याप्त महत्व दिया है। कोमलकांत पदावली का प्रयोग है तो कठोर वर्णों का भी प्रयोग है। माघ की भाषा में परिष्कार, लालित्य, प्रवाह, भाव अभिव्यक्ति की क्षमता और कल्पना शक्ति का अद्भुत प्रयोग हुआ है। माघ का काव्य सौंदर्य उत्तरवर्ती सभी कवियों के लिए अनुकरणीय एवं प्रशंसनीय रहा है। प्रसाद, माधुर्य एवं ओज गुणों का संतुलित सामंजस्य माघ की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। माघ ने काव्यगत सौंदर्य एवं रमणीयता का मौलिक मापदंड क्षण क्षण में प्रतीत होने वाले नूतनता को माना है, जो कि माघ की अपूर्व कल्पना शक्ति का मौलिक चिंतन एवं विश्व के कवियों के लिए अनुकरणीय आधार स्तंभ के रूप में माना जा सकता है। इसी कारण माघ ने शिशुपाल वध में सभी नवीन विधाओं का प्रयोग कर परंपरा को छोड़कर काव्यगत नूतन परंपराओं का आविर्भाव किया है। और माघ की भाषा में पंडितयगत दुरुक्त के साथ साथ कोमलकांत पदावली भी पर्याप्त प्रयुक्त है। कहीं ओज गुण की बहुलता है तो कहीं माधुर्य एवं प्रसाद गुण प्रयुक्त है, कहीं समास बहुलता है तो कहीं असमास या अल्प समास प्रयुक्त है। मैथिली की ध्वनि के अनुरूप ध्वन्यात्मक शब्दों का सुंदर प्रयोग माघ जैसा महाकवि की ही कर सकते हैं और कोई नहीं। शिशुपाल वध में यद्यपि मुख्य रस वीर है तथापि अन्य सभी रसों का पर्याप्त परिपाक सर्वत्र दृष्टव्य है। विशेषतः शिशुपाल वध के सर्ग 7 से 12 तक श्रृंगार रस का बाहुल्य होने से श्रृंगार मुख्य रस के समान प्रतीत होने लगता है। वीर रस मुख्यतः 18 से 20 सर्गों तक व्याप्त है। 19वें सर्ग में चित्रालंकारों का आश्रय लेकर माघ ने अपना महाकवित्व सिद्ध किया है।
संस्कृत काव्य जगत में भारवी का अर्थ गौरव सर्वाधिक श्रेष्ठ माना गया है, किंतु महाकवि माघ ने भाव गंभीर्य के साथ अर्थहंत हर किस्म के अलंकार का प्रयोग कर अपनी अद्भुत कल्पना शक्ति द्वारा अर्थ गौरव में भारवी से भी अधिक श्रेष्ठ सिद्ध की है, जो कि माघ को विश्वस्तरीय महाकवियों की श्रेणी में स्थापित करती है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, श्रेष्ठ व्यक्ति स्वभाव से ही मितभाषी होते हैं। ये मानवगत स्वभाव है कि मनुष्य ज्यों ज्यों ऊपर उठता जाता है त्यों त्यों सांसारिक विरक्तता अथवा ब्रह्मलीनता के कारण कम बोलने लगता है। और ये माघ की बड़ी विशेषता है कि वे कम शब्दों में, अल्प शब्दों में बहुत गंभीर अर्थ अभिव्यक्त कर सकते हैं। वैसे शत्रु द्वारा किया गया अपमान अत्यंत कष्टकारक होता है। संपूर्ण विश्व में अनेक ऐसे युद्ध लड़े गए हैं जिनमें दूसरों द्वारा किया गया अपमान प्रमुख कारण रहा है। इस प्रकार शिशु पलवाद में सहस्रों ऐसे प्रयोग हैं जो विश्व स्तर पर मानव समाज में व्याप्त परिस्थितियों एवं स्वभावों का सटीक चित्रण प्रस्तुत करते हैं। ये चित्रण अत्यंत अल्प शब्दों द्वारा अर्थ गौरव के साथ साथ माघ की सुकावित्व शक्ति को भी प्राप्त करता है। तो अब अंत में बोरिस कुछ संस्कृत में माघ के बारे में बोलेगा। निष्कर्षतः पांडित्य समाज माघ वैदुषस्य तस्य च कृतिः शिशुपालवधं महाकाव्यस्य निकाषः मन्यते। अस्मादेव कारणात् सर्वेपि काव्याः महाकवयः ग्रंथकारः काव्यशास्त्रकारः इतिहासकारश्च माघस्य महापाण्डित्यस्य गौरवत्वेन प्रतिपादयन्ति। एतदेव कारणं यत् माघो न केवलं राजस्थानस्य अथवा भारतवर्षस्य अपितु अखिल विश्वस्य कवि समुदायस्य गौरवः। एतत्तु राजस्थानधारयः सौभाग्यं यत् अत्र आदर्शनः अनाग्ररत्नानि उत्पन्नः इत्यतः महाकवि माघस्य शत नमनम्। धन्यवाद। धन्यवाद आप दोनों को। और मॉस्को से संस्कृत और हिंदी में इतना सुंदर चर्चा, इतनी सुंदर उद्बोधन सुनने के बाद मुझे लगता है कि सभी बहुत तृप्त हैं, बहुत प्रसन्न हैं। और अब कार्यक्रम अपने अंतिम सोपान पर है और हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट संस्कृत के मैं कहूँगा कि जिसको बोलते हैं कि सबसे बड़े विद्वान हमारे भारत में जो हैं आज, डॉक्टर प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, वो हमारे साथ आज यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं उनको निमंत्रण दूंगा कि वो मंच पर आएँ और हमारा मार्गदर्शन करें माघ के बारे में, और आगे जो कार्यक्रम है इसके समापन धन्यवाद ज्ञापन आप करें प्रोफेसर डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी। मुझे लगता है कुछ तकनीकी समस्या हो गई है जिससे अभी मुझे दिख रहा है कि वो दिख नहीं रहे हैं, तो 1 मिनट हम उनका इंतज़ार कर लेते हैं।
हमारे जितने भी विद्वान जो दूर दराज से जुड़े हुए हैं और अलग अलग समय जो है उसमें जुड़े हुए हैं, तो उन सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने समय निकाला और आप यहाँ पर जुड़े। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग थोड़ी देर प्रोफेसर राधा वल्लभ जी का इंतज़ार करते हैं। वो आ गए हैं लगता है। जी सर, आप दिख रहे हैं और आपकी आवाज़ भी सुनाई दे रही है। आवाज आ रही है? जी जी जी। हाँ, मुझे बहुत खेद है कि कुछ गलती से कहीं अंगूठा मुझसे उस पर स्पर्श हो गया कोई और दिक्कत फिर से नहीं। मुझे जुड़ना पड़ा। आप लोगों को जी परेशानी हुई, मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ। अभिषेक त्रिपाठी जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं तथा उपस्थित सभी विद्वान वक्ता और इस कार्यक्रम में उपस्थित सारे विश्व के सभी सुधीजन, मैं समझता हूं कि हम लोगों के लिए बहुत ही अभूतपूर्व अनुभव रहा। It has been quite a unique experience for all of us and it has been a wonderful event. बहुत ही सुंदर कार्यक्रम राजस्थान संस्कृत अकादमी तथा कला संस्कृति पुरातत्व विभाग राजस्थान सरकार ने यह आयोजित किया और ऐसे कार्यक्रम और भी आगे होते रहेंगे। I hope that many more such events will be organized. और माघ के कवित्व पर, माघ के की उपलब्धियों पर बहुत ही सार्थक सारगर्भित चर्चा सभी वक्ताओं ने यहाँ पर की है। अनेक पक्ष उनकी काव्य कला के यहाँ प्रस्तुत किए गए और संस्कृत में एक सुंदर कहावत है, मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता। An ideal speaker should speak precisely and he or she should bring out the essence of whatever he intends to or she intends to say. So all the learned speakers have followed this maxim और बहुत ही सारगर्भित रूप में सभी वक्ताओं ने माघ के संबंध में अच्छी चर्चा आज की इस संगोष्ठी में की और ज्योति शर्मा को मैं बधाई देता हूं। वो मनोविज्ञान की छात्रा हैं, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने परिचय दिया और किस तरह से नई पीढ़ी को जोड़ा जा सकता है इसका भी एक नमूना हमारे आयोजकों ने, संजय झाला जी ने इसमें प्रस्तुत किया। वे बहुत ही कार्यकुशल हैं और अच्छे आयोजक हैं। और नी पुट्टू रत्नी जो बाली इंडोनेशिया से पधारी इस मंच पर, उन्होंने एक रोमांटिक कवि के रूप में माघ को स्थापित किया और इनके प्रकृति प्रेम की चर्चा की। एंड शी राइटली पॉइंटेड आउट टुवर्ड्स Magha's love for nature and Magha as a sensitive poet, एक बहुत ही संवेदनशील कवि के रूप में माघ के काव्य का उन्होंने विमर्श किया। And she discussed Magha as a poet of diction, his qualities, his style, that also she discussed. अतीला ने बहुत ही सुंदर हिंदी में अपना व्याख्यान दिया और माघ का प्रकृति से जो घनिष्ठ संबंध है उसकी तो उन्होंने चर्चा की ही। माघ को उन्होंने अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति के कवि के रूप में स्थापित किया। माघा unveils both the internal landscape and the external landscape. This is what is the quality of Magha as a poet. और दहिया जी जो नेपाल से आए हैं और बहुत ही ललित सुंदर भाषा में उन्होंने माघ के पांडित्य की चर्चा से आरंभ किया अपना वक्तव्य। माघ के समृद्ध शब्द भंडार की उन्होंने चर्चा की। Magha's very rich vocabulary. About that, दहिया जी very beautifully has talked about. और जैसा अभिषेक जी ने कहा और दहिया जी ने भी कहा कि माघे संति त्रयो गुणा, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। तो कालिदास की उपमा और भारवी का अर्थ गौरव, दंडी का पद लालित्य, ये तीनों गुण माघ में हैं। ये हमारी
पंडित परंपरा में कितनी प्रिसाइसली सुंदर समीक्षा किसी कवि की जाती है। इस तरह के बहुत सारे श्लोक हमारी परंपरा में प्रचलित हैं। उनमें से चारों कवियों की खूबियां किस तरह से हमारे पंडित बताते हैं, उसका एक नमूना यह है। So Magha, as an all-round scholar, that is what Dayaji was talking about, and he rightly cited a very well-known line about Magha. Navsarga gate Maghe Nav Shabdo na Vidyate. Abhishek ji also discussed this. So Magha's richness in his vocabulary, and if you master 9 cantos of Magha, you become a master of Sanskrit language. You learn the whole dictionary of Sanskrit language. This is what the tradition tells us about Magha. And माघ की जो और उपलब्धियां हैं काव्य की, उस पर भी बहुत सुंदर रूप में दहिया जी ने चर्चा की। रूस से मॉस्को विश्वविद्यालय से ल्यूडमिला और उनके पति बोरिस, दोनों ने जो सुंदर जुगलबंदी की है वह तो बहुत ही आनंददायक हमारे लिए रही। और बोरिस ने अत्यंत ललित संस्कृत में अपना जो व्याख्यान दिया है, सो बोरिस महोदया सर्वथा अभिनंदनीया, तहि अत्यंतम ललित ललितया संस्कृत गिरा संस्कृत भाषया स्वकीयं वक्तव्यं प्रस्तुतं, तहि राजस्थान प्रदेशः सरस्वत्याः देशः इति कथितम्। He said that Rajasthana is the land of goddess Saraswati. Etattu sarvata samichinam tehi kathitam. Rajasthan dhara vishwandya vartate. Ityapi tehi pratyapadi. The land of Rajasthan. He talked about the glory of the land of Rajasthan. And Magho Vishwandya Kavi. Iti te pratipaditavantah. Magha, he established Magha as a world poet. And he paid his tributes to the glory of Rajasthan, where such stalwarts like Magha flourished. विदुषी लुडमिला ने माघ की जन्मभूमि की चर्चा की, उनके रचनाकाल के बारे में उन्होंने बताया, बहुत ही युक्त प्रतिपादन उन्होंने किया और माघ काव्य के सारे ही पक्षों पर उन्होंने विशद विचार किया। और एक बात जो बहुत सुंदर कही है लुडमिला ने कि शिशुपाल जिस तरह कृष्ण को अपमानित करता है, उसमें गालियों का प्रयोग हुआ है। मैंने उस पर पूरी पुस्तक लिखी है, संस्कृत साहित्य में जो गालियां आई हैं। और संस्कृत भाषा इतनी संपन्न है कि यह नहीं समझना चाहिए कि गालियां उसमें नहीं दी जाती होंगी, वो तो जीवंत भाषा रही है। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ है श्री कृष्ण और शिशुपाल का, उसमें शिशुपाल जो अब्यूसिव लैंग्वेज दैट Shishupala has used for Sri Krishna, and Magh very aptly brings out the problem of the use and abuse of language there. ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष एक माघ के काव्य का है। ये इस पर बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने प्रकाश डाला। अब सभी वक्ताओं ने बहुत सुंदर विचार अपने यहाँ सारगर्भित रूप में रखे। कुछ अपनी बातें मैं कहूंगा और ज्यादा अधिक समय मैं नहीं लूंगा। हालांकि मैं उतना कुशल वक्ता नहीं हूं जितना मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता, एक अच्छे वक्ता के इस स्टैंडर्ड का पालन करते, इस मानदंड का पालन करते हुए हमारे वक्ताओं ने अपने वक्तव्य यहाँ दिए। तो यदि मैं थोड़ा कहीं अतिरेक करूं तो आप मुझे क्षमा कर देंगे, परंतु मैं 5-7-8 मिनट में अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करूंगा। एक मेरा सुझाव यह है आयोजकों के लिए, मैं अभिनंदन करता हूं, उन्होंने बहुत सुंदर आयोजन किया है, पर मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि माघ पर एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जयपुर में ऑफलाइन रूप में भी किया जाए आगे से, और जितने हमारे मित्र इस आज के इस आयोजन में सम्मिलित हुए हैं उनको उसमें आमंत्रित किया जाए। और जयपुर में तो आयोजन हो ही, लेकिन भीनमाल अवश्य ले जाया जाए हमारे सब विदेशों को, भारत के और विश्व के जो हमारे माघ में रुचि रखने वाले विद्वान हैं, ताकि संसार देख सके कि माघ की जन्मभूमि कैसी है। That has been a land of glory, a great glory has been sung about Bhinmala. It was called Shrimala, and there is a Purana, Shrimal Puran, about that Bhinmal or Shrimal. तो पुराणों में
भीनमाल का या श्रीमाल का बहुत ही महात्म्य बताया गया। और केवल माघ ही नहीं, वहां तो ब्रह्मगुप्त जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं संस्कृत के, ए ग्रेट साइंटिस्ट एंड ग्रेट एस्ट्रोलॉजिस्ट, एस्ट्रोनॉमिस्ट like Brahmagupta was living at Srimal or Bhinmal, and so many Jain authors and poets, we get their name in tradition, they were living at Bhinmal. So it was a land which gave birth to so many great pandits and poets, not only Magha. So we should also have some event at Bhinmala and to rediscover the place for the world. भीनमाल इस समय जैसा लगता है उसको थोड़ा और फेसलिफ्ट मिले, उसको और भी अधिक चमक प्राप्त हो, मेरी यह इच्छा है। और माघ जहाँ रहते थे, कई वर्ष उन्होंने बिताए, कितनी उनकी कथाएं उनके बारे में हम जानते हैं, कितने दानशील थे। भोज ज्यादा दानशील है कि माघ ज्यादा दानशील है, ये संस्कृत की कथाओं में बताया जाता है। किस तरह से भोज को भी ईर्ष्या हो गई थी कि वो देखने आए थे भीनमाल, ये कथा मिलती है कि माघ जो है ऐसी संपत्ति कैसे दान करता है, माघ के यहाँ रहे और चकित होकर के रह गए। ये जो हमारे संस्कृत में कथाएं उनमें बताया जाता है, विस्तार से यहाँ संदर्भ देने का समय नहीं है। तो मैं एक बात जो कही गई है, हमारे वक्ताओं ने कहा कि बृहत्त्रयी के कवि हैं माघ। हमारे यहाँ केवल बृहत्त्रयी ही नहीं, बृहत्त्रयी की जो कॉन्सेप्ट है वो तो बहुत बाद में आया, मेरे ख्याल में जो कॉलोनाइजेशन पीरियड था हमारे यहाँ उसमें ये कॉन्सेप्ट आया। लेकिन हमारे यहाँ जो संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन कौन है, इसकी जब गिनती की जाती है तो राजशेखर जो माघ के कुछ समय बाद ही हुए, राजशेखर भी 9th 10th सेंचुरी में हुए और वो बहुत बड़े आचार्य, बहुत बड़े कवि हैं। सो ए ग्रेट थिंकर, ए थ्योरिस्ट एंड ए पोएट, Rajshekhara, he almost writes a mini history of Sanskrit literature. He writes about 37 Sanskrit poets in very beautiful stanzas, and then he summarizes the names as a resume. He gives the names of 10 great poets of Sanskrit. So up to 10th century, these have been the 10 great poets. ये 10 महाकवि हैं संस्कृत काव्य की परंपरा के। ऐसा राजशेखर 10वीं शताब्दी में, 9वीं 10वीं शताब्दी में हमको बताते हैं। तो वो स्टेंजा, वो श्लोक में पढ़ रहा हूँ। आदौ श्री कालिदासस्यात् अश्वघोषस्ततः परम भारविश्च तथा भट्टिः कुमारश्चापि पंचमः माघ रत्नाकरौ पश्चात् हरिश्चंद्रस्तथैव च कविराजश्च श्रीहर्षः प्रख्याताः कवयो दश। These are the 10 great poets of Sanskrit poetry up to 10th century. Kalidas, Ashwaghosh, Bharavi, Bhatti, Kumar Das, the great epic poet of Janki Haran Mahakavya, and I am happy to inform you that he came from Sri Lanka. He was a resident of Sri Lanka. He was born at Sri Lanka. Such a great poet who is counted after Kalidasa in our classical Sanskrit poetry. Kumar Dasa is compared to Kalidasa. So he comes from Sri Lanka in 5th century. And then Magha and Ratnakara and Harishchandra, Kaviraj and Sriharsha, these are the 10 great poets of Sanskrit, classical Sanskrit poetry. Rajshekhara, a great acharya and a great poet. Rajshekhar जैसे महान आचार्य और कवि ने ये 10 नाम 37 कवियों पर प्रशस्ति लिखने के बाद उन्होंने गिनाए, तो उसमें माघ को भी उन्होंने कहा कि ये संस्कृत, पूरी संस्कृत साहित्य की हजारों वर्ष की परंपरा में 10 महान कवियों में से एक हमारे यहाँ माघ हैं। और माघ ने स्वयं अपने बारे में बताया, अपने महाकाव्य के बारे में उन्होंने बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया है। अपने महाकाव्य के अंत में श्री शब्द रम्य कृत सर्ग समाप्ति लक्ष्म लक्ष्मी पतेश चरित कीर्तन माघ चारु। माघ वैष्णव कवि हैं, वो प्रकृति के कवि हैं, इंटरनल एक्सटर्नल लैंडस्केप उनमें है, वोकैबुलरी उनकी बहुत रिच है, but he is a Vaishnava poet, and this bhakti movement had come by the time of Magha. So he is very proud that I am singing the glory of Lakshmi Pati. I am singing the glory of Lord Krishna, who is the incarnation of Vishnu. And Sri Shabda Ramya Krita Sarga Samapti Lakshma. In each canto of my Mahakavya, I end the last stanza, I end with the word Sri. So that is called Shank Mahakavya. So this is a very symbolic use of Sri, like Bharavi
he also uses the word Lakshmi in the last stanza of each and every canto of his epic. So Magha has emulated Bharavi on several scores. माघ ने भारवी का बहुत अनुकरण भी किया है, तो भारवी का महाकाव्य लक्ष्म्यंक है. It has a signature of Lakshmi, the goddess Lakshmi, and Magha's epic is Shyank Mahakavya. It has a signature of Lakshmi, of Shri, and it's a very symbolic use. And Magha says that I am singing the glory of Lord Krishna in this epic poem of mine. मैं लक्ष्मीपति का चरित्र से बता रहा हूँ, यही मेरे महाकाव्य की चारुता है, सौंदर्य है, ऐसा वो गौरव के साथ कहते हैं. और अब मैं जो बहुत थोड़ा सा समय बचा है, उसमें मेरी इच्छा है कि मैं माघ के 2-3 श्लोक पढ़ूं जो मुझे पसंद भी है, और आपको लगेगा कि माघ कितनी खूबसूरत कविता लिखते हैं. माघ, व्हाट ए ब्यूटीफुल पोएट्री दैट माघा क्रिएट्स. और ये जो संस्कृत के पंडित हैं, संस्कृत के छात्र हैं, वो तो जानते ही हैं, ये उनके आफ्ट कोटेड स्टेंजास हैं. छठे सर्ग में उन्होंने वसंत का वर्णन किया है शिशुपाल वध में. उसमें उन्होंने किस प्रकार से भौरे गुंजार कर रहे हैं बगीचे में, इसका वर्णन किया है. उसमें ये कपुलेट है: मधुरया मधुबोधित माधवी मधु समृद्धि समेधित मेधया मधुकरांगनया मुहुरुन्मदत् निभृताक्षर मुज्जगे. We just see the rhythmic beauty, the rhythmic patterns, the alliterations, the anuprasa. Madhuraya, Madhubodhita Madhavi, Madhu Samradhi Samedhita Medhaya, Madhukaranganaya, Muhurunmadat Dhvanivrata, Nivratakshara Mujjage. As if the mridanga is also being played and the beautiful humming of the she bird, the she bee. So Madhukarangana भंवरी ने मधुपान के कारण उसकी मेधा वसंत ऋतु में समृद्धित हो गई थी, कुछ मतवाली हो गई थी. खिलते हुए पुष्पों वाली माधी लता से मधुपान करती हुई वह गुंजार कर रही थी, इतना कहा गया है. So it is not the meaning which so much matters, it is the beauty of the sounds, the rhythmic patterns, and the whole spring which is blooming. So, and the cycle of seasons, by the use of alankara, by repetitions of these sounds, the cyclic patterns of the seasons, the cyclic order of time. This is what the Sanskrit poets bring out, a big spectrum of time. They would bring out through these rhythmic patterns of time. So the description of the female bee is here, how she is intoxicated during the spring festival by the fragrance of the blooming flowers, and how she is sweetly humming in a tune. One more stanza outside. नवपलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांतमलोकयत् ससुरभिम सुरभिम सुमनोभरै. So these are very beautiful lines from Magha, how he creates Shlesha, Panoramsia, how he creates Yamak Alankara, how the alliterations, the Anuprasa beauties, and the meaning is equally beautiful. So the beauty of sound and sense. This is the Magha is creator of these symphonies. So Krishna वसंत को खिलता हुआ देख रहे हैं जब अपनी यात्रा में, और वायु जो है फूलों की सुवास से भर गई है. पलाश के फूल रहे हैं, पलाश के पेड़ों पर फूल रहे हैं, और कमल पूरी तरह से खिल गए हैं, सरोवरों में परागों से भरे हुए, और लताएं चरा रही है. ये जो नेचर बताया है हमारे वक्ताओं ने, the treatment of nature, the very vivid descriptions of nature which Magha gives, and Krishna looks around over the landscape. The breeze is fragmented with the aroma of flowers, and it is slowly blowing, and the palasha trees are sprouting with new leaves. So all these descriptions and very minute and subtle imagery, this is what Magha creates here. And the cyclic seasons, the ऋतु चक्र का आवर्तन विवर्तन जिसको कि माघ चित्रित करते हैं, यह हम सारे माघ के प्रकृति वर्णनों में हम देखते हैं. और as a philosopher, as a scholar, he is simply supreme.
superb. The way he displays his mastery of philosophy. You just see the description of appearance of Narada. Narada is descending from heaven, from sky, and somebody, a phenomena descending from sky. How it will appear slowly and slowly, how it will emerge. Such a minute observation, and he has utilized the concept of savikalpa gyan and nirvikalpa gyan. So phenomena appearing as nirvikalpak, something is flashing around, something shining is coming around, we don't know what it is. This is nirvikalpa gyan. So chayas tishamit yavadharitam pura. So first he appears like a light flashing around, and no figure, no akriti is visible. So you can't comprehend the name of the person who is coming. You just see the lights appearing before us, and slowly when he descends below, then you see him visualized. You see his appearance. So these all the philosophical notions, how they become inculcated in poetry. This is what Magha and great poets of Sanskrit do, and this is the unique heritage of Sanskrit literature. So I don't want to take much of your time. And Magha is great when he presents his observations about so many heroines, their anubhavas, very subtle observations, you see. There is no point to cite out. A unique description about the Rurudisha. A heroine, a lady, is just going to weep, and nobody could capture that image. Magha gives a word there, Rurudisha. She's just about to weep. So how her face would look when she's about to weep, and the hero says, don't weep, it will be amangal if your tears come out. So how her cheeks look, how her brows look, how her eyes look when she just to weep. This is a very subtle picture, you see. So such subtle observations. जो रोने ही वाली है जो महिला, और रोई नहीं है, अभी उसको रोका जा रहा है कि रोना मत, ये शुभ अवसर है, उसकी क्या छवि होगी, उसका एक चित्र माघ ने क्या अद्भुत दिया है, जो प्रेम का वर्णन करते हैं छठे सर्ग में. तो Magha is a creator of such beauties, you see, and I hope again that we will have many more such occasions to discuss Magha and to give an outreach, to give a global outreach to Magha. उज्जैन में कालिदास समारोह होता है. एक समय था जब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत भव्य रूप में हुआ करता था, और सारी दुनिया से बड़े बड़े स्कॉलर्स, यहाँ तक कि नाट्य मंडलियां उज्जैन के कालिदास समारोह में, हमने ग्रीस की मंडली का वहां नाटक देखा कालिदास का, जापान की मंडली का हमने नाटक, संस्कृत नाटक वहां देखा उज्जैन में. सो जयपुर में भी एक ऐसा ही अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव माघ के नाम पर हो, जहां पर कि सारे दुनिया के लोग अपनी कलाओं का प्रदर्शन माघ के संदर्भ में करें, और माघ को एक विश्व कवि के रूप में सारी दुनिया पहचाने. इन शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं. मुझे आपने धैर्यपूर्वक सुना, और बधाई देता हूं. आप सभी वक्ताओं का पुनः पुनः अभिनंदन करता हूं. इतनी सुंदर मूर्तियां मुझे सामने दिखाई दे रही हैं इस प्लेटफॉर्म पर, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, और आशा करता हूं कि हम लोग फिर कभी भारत में भी प्रत्यक्ष मिलेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद सर, और इतना सुंदर आपने वर्णन किया, इतना आपने डिटेल में माघ के बारे में हमें बताया. मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग यहाँ से अपने आप को बहुत ही समृद्ध पा रहे होंगे, और माघ के बारे में और जानने की, और पढ़ने की, और चर्चा करने की उत्सुकता यहाँ से मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़ी होगी. और जो आपने एक सुझाव दिया कि माघ को एक विश्व कवि बनाने के लिए हमें कोई माघ महोत्सव ऑफलाइन तरीके से जयपुर में मनाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये सुझाव सचमुच अनुकरणीय है, और ज़रूर इस पर कुछ न कुछ आगे प्रयोजन किया जाएगा, जिसमें हम सभी जो विदेशों से हमारे विद्वान आज जुड़े हुए हैं उनको भी निमंत्रित दे सकेंगे, और जो सुन रहे हैं हमको उनको भी हम उसमें ला सकेंगे. तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद
इस कार्यक्रम में माघ मंथनम 2022 कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। और मैं अब कार्यक्रम, मुझे लगता है कि कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, विदा और शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। नमस्ते। धन्यवाद।